Hello and welcome in College Therapy. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे UG CET 2024 एसपी निवतार जो कंडक्ट करेगा इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च एडमिशंस, जो कि इस एंट्रेंस के अंडर टोटल 3 कोर्स आते थे प्रीवियस ईयर तक, जिसमें कि 4 कॉलेजेस था। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स. And this year, 1 college are also included in this entrance, that is CRC. You can see here CRC, GMC, Guwahati. This is included also this year for admission BPT, BOT, BPO. You can see all that. Now we come back on my major issue, that is major things, that is admissions. We are discussing in this video complete important dates, which document is required, how can you apply. I will show you a demo application form that is not rare, that is made for these videos and your demo complete with my names on, and I am your host and owner of College Therapy and a student of Occupational Therapy from Kolkata, NILD Kolkata, National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata. And also PGCET SP Niwtar will comes out next video. We are discussing PGCET. So if you are not subscribed this channel, then subscribe the channel and join our group chat where you can ask your query about your CET or counseling program or entrance exam related. We can also discuss which book is best for your practice for this exam, like UG and for also PG. So please check all link that is given in the description box and check the group link and everything. And if you have any query, then you can contact me on my Instagram ID or anywhere as you mentioned in the description. Let's start. How can you? Let's start with the important date. This is the information module. Here you can see all the complete detail for UG CET, physiotherapy, occupational therapy, prosthetic and orthotics, and this year audiology and speech language pathology, BASLP, at SP Niwtar, NILD Kolkata, NIPMIT Chennai, and Pandit Deendayal Upadhyay, New Delhi, that is also called IPH Delhi. And new one is CRC Guwahati, that is under the campus of GMCH Guwahati located. Previous year NILD Kolkata conducted this entrance every 2 year. Alternatively, NILD Kolkata and SP Niwtar conduct this common entrance test for all these various courses in all these 4 colleges, that is under the central government empowerment and justice government of India. Here you can see application fee
for UG student, for general, OBC and EWS candidate have to fill 1000. It means अगर आप जनरल से हो, OBC से हो और EWS से हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 100 पे करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप SC ST या दिव्यांगजन हो तो आपको UDID के साथ अप्लाई करना पड़ेगा या दिव्यांगजन सर्टिफिकेट भी आपको लगेंगे, फिर 800 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, जिसका लास्ट डेट है 20 मई। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा 4 जून को और आपका टेस्ट का टेंटेटिव डेट है 23 जून। रिजल्ट आने की टेंटेटिव डेट 5 जुलाई। एंड आपको चॉइस फिलिंग मीन्स काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 8 जून से। फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड आपको 12 जून को मिलेगा सीट अलॉटमेंट। 12 जून से आपको 10,000 रुपये फ़ी सबमिट करना पड़ेगा, सीट लॉकिंग चार्ज। फिर फर्स्ट राउंड का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 25 जून, 25 जून एंड सीट लॉकिंग। एंड फिर सेकेंड काउंसलिंग 31 जून से स्टार्ट होगा। फिर सेकेंड काउंसलिंग का सीट एक्सेप्टेंस 31 जून एंड जुलाई में आपको सेकेंड राउंड की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फिजिकली आपके अपने अलॉटेड कॉलेज में कराने होंगे। देन सेकेंड 14 जुलाई थर्ड काउंसलिंग एंड देन सीट लॉकिंग फी एंड देन फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन आपको 28 जुलाई एंड देन मॉप अप राउंड होगा 30 जुलाई। सेशन विल बी स्टार्टेड, मेनली होता है सितंबर अक्टूबर सेशन इस सभी कॉलेजेस में। तो आपको सितंबर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली आप अभी फ़िलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का देखें। आपके जितने भी काउंसलिंग में कन्फ्यूजन है वो सभी इस चैनल पे आपको क्लियर कराए जाएंगे। डे बाय डे अकॉर्डिंग टू नोटिस एक एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो 100+ स्टूडेंट इस कॉलेज थेरेपी के चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैट के गाइडलाइंस में अपना एडमिशन पाए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एंट्रेंस है बहुत कम टाइम के लिए टाइम पीरियड देता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को छूट जाता है अप्लाई करना। सीट लॉकिंग चार्ज, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं रहते हैं, वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो सभी टाइप के गाइडलाइन, सभी टाइप सब कुछ आपको इस चैनल पे और इस व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, कोई आस्किंग क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कॉलेज थेरेपी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि सबसे पहले उस पर हर एक लिंक आ जाता है। और डिस्क्रिप्शन वीडियोस PDF, ये कंप्लीट PDF CET का आपको उस चैनल पे ही मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आपको अप्लाई करने के लिए मैं डेट बता दिया, 15 अप्रैल से स्टार्ट है, 20 मई तक है। आपको एप्लीकेशन फ़ी अगर जनरल OBC है 1000 एंड 800 लगेगा SC ST PWD के लिए। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, हाउ टू अप्लाई, हम आपको करके दिखाएंगे जो कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस हो। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन are accepted, other any form of application will stand rejected. Please read instruction carefully before filling up the application. So जितने भी आप एक चीज़ का याद रखें, कहीं भी आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। सो जो भी डिटेल आप भरें एक बार में सही भरें, क्योंकि एक बार गलत हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन
रिजेक्ट होने की चांस पड़ जाएगी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो तो, क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे भरें। कंप्लीट डिटेल आपको मैं डेमो करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 5 कॉलेजेस हैं, ये 5 कॉलेजेस हैं जिसमें कि और इस साल जो है BSLP ऐड हुआ है SP नैनीताल में। NILD में 3 कोर्स है, BSLP ऐड हुआ है SP नैनीताल और निपमिट चेन्नई में पहले से है, और CRC में सिर्फ BSLP का कोर्स होता है। अभी तक भी BOT, BPT और BPO इसमें नहीं दिया है। इस साल ये CRC गुवाहाटी ऐड हुए हैं BSLP के लिए। तो अगर आप आसाम, अगर आप अरुणाचल प्रदेश साइड से हैं तो गुवाहाटी आपको इजी होगा, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स इस एंट्रेंस में अभी तक नहीं दिया है। CRC के लिए अगर आपको स्पीच थेरेपी के बैचलर डिग्री लेने हैं, स्पीच थेरेपिस्ट बनने हैं, तो आप CRC गुवाहाटी अप्लाई कर सकते हैं। SP नैनीताल में आपको 4 कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। सीट किस कॉलेज में कितने हैं वो सब हम अभी आगे डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे। SP नैनीताल में 4 कोर्स हैं, NILD कोलकाता में 3 कोर्सेस हैं। सभी कोर्स 4 साल 6 मंथ इंटर्नशिप के साथ रहेंगे, जबकि BSLP 4 साल 1 ईयर इंटर्नशिप के साथ रहेगा। टोटल 5 साल का होगा। निपमिट चेन्नई में आपको 4 कोर्स मिलेंगे, IPH दिल्ली में 3 कोर्स और CRC गुवाहाटी में आपको 1 कोर्स मिलेंगे। ये है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से भुवनेश्वर SP नैनीताल एफिलिएटेड है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से NILD कोलकाता है। तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई, जो कि बहुत बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड है निपमिट चेन्नई। IPS दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और CRC गुवाहाटी श्री माता शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस गुवाहाटी आसाम से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन लेने के लिए जो आप एंट्रेंस देंगे उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स के, अगर आप 12th में मैथ्स लिए हो तो आप मैथ्स से भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आप मैथ्स वाले स्टूडेंट ओनली प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स अप्लाई कर पाएंगे। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बायोलॉजी होना मस्ट है, और BSLP लिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आप देख लीजिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको जितने भी सही गाइडलाइंस मिलेंगे, जो भी एग्ज़ाम हैक्स, टिप्स आपको इस वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियोस आने वाले में मिलेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इस चैनल पे आपको हर टाइप का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, कैसे अच्छे रैंक लेके आएँ, कैसे काउंसलिंग कराएं, कौन सा कॉलेज, चॉइस फिलिंग में कब डाले, इतना रैंक है तो हमें सीट कैसे मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 मार्क्स का PCB से आएगा, 10 नंबर आपका जनरल एबिलिटी और GK से आएगा। ये सभी, कोई एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन स्टूडेंट आपका होना जरूरी है, ठीक है। नेशनलिटी में आपका इंडियन या फॉरेन अगर है, फॉरेन के लिए साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से आप हो सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ मैंडेटरी, BPT और BOT के लिए बायोलॉजी इज़ मैंडेटरी, ठीक है। जबकि BPO और BSLP के लिए बायोलॉजी मैथ्स दोनों से हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, आप
एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीट की बात कर लेते हैं। तो एसबी नेवतार में बीपीटी में 62, बीओटी में 62, बीपीओ में 46 और बीएसएलपी में 10। बीएसएलपी अभी अभी स्टार्ट हुआ इसीलिए कम सीट आपको दिखेगा। एनएलडी में 57, बीपीटी 56, बीओटी और बीपीओ 47। निपमेट चेन्नई बीपीटी 18, बीओटी 18, बीपीओ 20 और बीएसएलपी 27 और सीआरसी गुवाहाटी बीएसएलपी 20 सीट है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख ले। इसमें फिजिकल हैंडीकैप, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट सब होता है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट ये पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। 2 सीट एनआईएलडी कोलकाता और एसबी नेवतार में बीओटी और बीपीटी में नॉर्थ ईस्ट के लिए रिजर्व होता है। 1 सीट बीपीओ में रिजर्व होता है। 1 सीट बीएसएलपी में रिजर्व होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। निपमिट चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट के लिए बीपीटी बीपीओ में 2 सीट रिजर्व होते हैं। ये है सीट मैट्रिक्स कंप्लीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अलग सीट में आपको इसमें नहीं दिखा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उसका अलग सीट मैट्रिक्स होता है। टोटल 68 सीट है बीपीटी, 68 बीओटी और 39 बीपीओ में। ये ईडब्ल्यूएस ये अनरिजर्व्ड 28, 28, 15, ओबीसी 18, 18 सीट है, एससी का 10, 10, 6 सीट है और एसटी का 5, 5, 3 सीट है। इसका आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया पूरा पढ़ लें। अब डिस्कस करते हैं हम फीस के बारे में, कोर्स फीस के बारे में। आपका एडमिशन फीस से लेके सब कुछ, अगर आप नेवतार में या अगर आपको यहाँ पे आप देख लीजिए एसपी नेवतार एंड सीआरसी गुवाहाटी दोनों का सेम फी है, दोनों का सेम है। 53,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा, जिसमें कि 10,000 इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फ़ी होता है और यूनिवर्सिटी फ़ी होता है 3500। ये आपको एक ही बार देना होगा 4 साल में। और ये नॉन रिफंडेबल जो 10,000 है ये भी आपको एक ही बार देना होगा। तो टोटल आपको फर्स्ट ईयर में आपको पे करने पड़ेंगे 53,000 और ये डिमांड ड्राफ्ट होगा, ऑनलाइन होगा, सभी कुछ इस वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईएलडी कोलकाता का 61,000 पे करना होगा। निपमेट चेन्नई में अगर आप बीपीटी बीपीओ और बीओटी से एडमिशन लेते हैं 44,000 और बीएसएलपी में अगर आप लेते हैं तो 41,700। अगर आप आईपीएच न्यू दिल्ली में लेते हैं 51,520 आपको मिलेगा, देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स फी का बात हो गया। ये इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, यहाँ पे एक एक का टोटल अमाउंट दिया हुआ है। कोर्स फी फॉरेन स्टूडेंट के लिए ई काउंसलिंग से पहले हो जाता है। मैं यहाँ मेनली इंडियन स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको एडमिशन के बाद बता दिए जाएंगे, हॉस्टल्स के जितने भी है। नाउ आपको सबमिट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन होगा। ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, आपको एक हाईलाइट दिखा देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। जब आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा तो कंफर्मेशन पेज का आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज होता है वो प्रिंट आउट करेंगे। फी स्ट्रक्चर का जो प्रूफ होता है वो आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद डेबिट कार्ड, देखिए एप्लीकेशन फ़ी कैन बी पेड थ्रू द, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब नॉन रिफंडेबल, वंस पेड इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक बार कर दिए, अगर आपका रिजेक्ट होता है, गलत हो जाता है तो नॉन रिफंडेबल होगा एप्लीकेशन फ़ी। और जितने भी ये येलो विजन में दिए हुए हैं इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट होंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो उसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी या जेपीजी और साइज होना चाहिए 40 से 100 केबी के अंदर और 100x100 पिक्सल का होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए 50 केबी तक होना चाहिए, 40 से 50 केबी जेपीईजी जेपीजी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑलवेज रिमाइंड, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग अपोजिट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन दिया जाता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। वो उसका साइज होना चाहिए 40 से 100 केबी।
नेक्स्ट अदर जितना भी सर्टिफिकेट है आपका, जैसे 12th का मार्कशीट, एक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो सभी 300 KB तक ही होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। ये सभी हैं तभी आपका ये चीज़ अपलोड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC से हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आपके स्टेट लेवल पे जो बने हैं वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपका सेंट्रल लेवल पे होगा। और EWS अगर आपके पास है तो विदिन 1 साल के अंदर का डेट होना चाहिए। अगर 1 साल के बाहर का है तो आप अभी भी अप्लाई करके जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। वो सभी डेट, वो सभी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल इशू जो होते हैं वो सभी आप अभी क्लियर कर दें, क्योंकि इस वीडियोज़ में आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। डॉक्यूमेंट ये सब हो गया। ये है प्रोसेस। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें आप बेसिक डिटेल कुछ डालते हो, फिर आप लॉगिन पे आते हो जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है। उसके थ्रू आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर पेमेंट करते हो और फिर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर पाते हो। ये है प्रोसेस। यहाँ पे इफ़ डिसाइडेड टू पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक द वैलिडिटी। आप अपने वैलिडिटी भी चेक कर लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का। फाइनल प्रिंट आउट कंफर्मेशन विल बी अवेलेबल आफ्टर 2 वर्किंग डेज ऑफ फी पेमेंट। फी पेमेंट के 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगा। ये मैं पहले ही आपको बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी OBC जनरल EWS के लिए 1000 है और 800 SC ST PWD PH के लिए है। अगर PWD PH है तो UDID कार्ड होना मस्ट है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। इम्पॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनलिटी, ये सब आप पढ़ लीजिए। सिलेक्शन किस प्रोसेस से होता है, तो आपके एंट्रेंस के जो रैंक मिलते हैं, एंट्रेंस में 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रैंक मिलता है। इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा, रैंक मिलेगा। उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है और रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलता है। इफ़ बाय द वे किसी का रैंक सेम हो गया तो कैसे डिसाइड किया जाता है किसे एडमिशन मिले, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट डिटरमाइंड बाय द मार्क्स ऑब्टेन। इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स का मतलब है आपके रिजल्ट में कभी भी मार्क्स नहीं बताया जाएगा कि आपका 100 में से कितना मार्क्स आया है। आपको बताया जाएगा कि आपका रैंक कितना है। इंटर से देखो, सबसे पहले अगर 2 या 2 से ज़्यादा से स्टूडेंट में सेम चीज़ आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कैंडिडेट गेटिंग हायर मार्क्स इन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स CET एग्ज़ाम में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सेक्शन से जो भी बच्चे हैं, तो अगर आप BPT BOT करेंगे तो बायोलॉजी वाला पार्ट देखेगा, BPO BSLP करेंगे मैथमेटिक्स, दोनों में से किसका ज़्यादा है, दोनों में से जिसका ज़्यादा रहेगा उसे। मान लीजिए कि ये भी सेम है तो किसका, कैंडिडेट का फिर केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा, ये भी सेम है, देन आप फिजिक्स का मार्क्स देखेगा। अगर ये तीनों सेम है तो आपका +2 गेटिंग हायर मार्क्स, इंटर में जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसे दिया जाएगा। ये भी अगर सेम है तो जिसका एज ज़्यादा है उसे रैंक हायर माना जाएगा। ये सभी प्रोसेस है अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो। सीट अलॉटमेंट, आप सीट जब ये काउंसलिंग का बात है, जब सीट आपको अलॉट हो जाएगा तो 10,000 फी आपको देने पड़ेंगे, सीट लॉकिंग चार्ज। इधर आप देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग के लिए। इस पे आपका मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप हाईलाइट रख लीजिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए उस टाइम काउंसलिंग के टाइम, सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो अभी आप कंफर्मेशन निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपका
बोर्ड 12th का होना चाहिए। CLC कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही आपको क्लास 12th में मिलते हैं, वो होनी चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जैसे हर एक बोर्ड क्लास 12th के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, मार्कशीट देता है, वो तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। कोई PDF, कोई जेरोक्स नहीं वैलिड होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट इस PDF के लास्ट में मिल जाएगा, वो चाहिए। SC ST हैं या OBC हैं तो आपको EWS, ये सब स्टेट लेवल पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हैंडीकैप्ड या फिजिकल हैंडीकैप्ड या PWD में आते हैं तो UDID कार्ड आपके पास होना चाहिए। SEBC सर्टिफिकेट इशू बाई गवर्नमेंट ऑफ और एनी स्टेट एप्लीकेबल देयर का नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका स्टेट का जो भी आपका SC ST OBC ये सर्टिफिकेट होगा वो मेंशन नहीं किया जाएगा। OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट विद इन 1 year बिफोर ई काउंसलिंग एक्सेप्टेड। ये सब फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है। तो सब कुछ जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले सेंट्रल लेवल वाले होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, अगर आप जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आप 12th में बहुत ज़्यादा ड्रॉप लिए हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन गैप सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, जो कि आपको नॉर्मली आपके नज़दीक कोर्ट कचहरी से बन जाएंगे। वहाँ जाएंगे आप, उसका फॉर्मेट सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। कॉशन मनी की बात करते हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करते हैं। देखो IPS दिल्ली निपमेड में सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, जबकि निवतार और NILD में बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है। ठीक है, डिसिप्लिन रिफंड डिक्लेरेशन ये सभी बात करेंगे। ये आपको एक सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। और ये है OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल यानी सेंट्रल लेवल पे। यहाँ पे देखिए, एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट, इसी टाइप का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस इज़ टू क्लैरिफाई दैट CVN मिस्टर कुमार आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके फादर्स नेम रहेंगे, यहाँ पे आपके विलेज कंप्लीट एड्रेस रहेगा और इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आएगा। ये है स्टडी गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप है क्लास 12th के बाद तो इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके इस PDF से आप निकालेंगे, प्रिंट आउट करके पूरा फिलअप करके, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा और जितने भी रिक्वायरमेंट है ये आपको कोर्ट कचहरी में एक टिकट आता है, जो टिकट अटैच करके आपको यहाँ पे स्टाम्प होगा कचहरी का, कोर्ट का, ये फिर सिग्नेचर होगा। देन बात कर लेते हैं कि आप जो एग्ज़ाम दोगे तो कौन कौन से सेंटर होंगे ऑल इंडिया में। अगरतला, ऐजवाल, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दीमापुर, गैंगटॉक, गुवाहाटी, इम्फाल, इंदौर, जम्मू, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रांची, रायपुर, राउरकेला, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। 29 टोटल दिए हुए हैं सेंटर। सेंटर कैन बी चेंज्ड एट द डिक्रिएशन ऑफ द चेयरमैन। हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए, ये कंप्लीट डिटेल आपको मैं दे दिया। इम्पॉर्टेंट डेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आप 12th में गैप किए हैं तो क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस लेवल पे आपको बनाना है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाके बना लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें सभी डिटेल आप क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रश्न भी मुझसे पूछना है तो मेरा इंस्टा ID दिया हुआ है, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लेकिन
फिजूल का मैसेज किसी का मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी अननोन या डिस्टर्बेंस मैसेज होंगे मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा ग्रुप और हर जगह से। सो बी अवेयर, वैलिड क्वेश्चन ही पूछे। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल एप्लीकेशन कैसे फिलअप किया जाए। तो आप एप्लीकेशन कैसे फिलअप करोगे, इस जगह पे आओगे, गूगल पे सर्च कर, गूगल पे आप सर्च करोगे एडमिशन एसबी निवतार, ये आएगा। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, फर्स्ट वेबसाइट पे जाओगे, ये चीज़ आप यहाँ से सीईटी का वाउचर भी जो मैं अभी डिस्कस किया हूँ, ये चीज़ यहाँ देखिए, सीईटी और पीजीसीईटी एप्लीकेशन इज़ लाइव नाउ। ये पीजीसीईटी का इंफॉर्मेशन वाउचर आप डाउनलोड कर सकते हो। इस जगह पे आते ही अप्लाई नाउ पे जाना है आपको। ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ ले पीजीसीईटी और सीईटी के बारे में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, यहाँ पे मैं एक डेमो अकाउंट भर के बताऊँगा। ये आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। अगर आप बैचलर लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का ये और यूजी का ये आप कर देंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी मस्ट है, आपको ओरिजिनल डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लोगे। कैप्चा भर के आप 76911Y रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू रजिस्टर सक्सेसफुली, कंप्लीट प्लीज चेक योर ईमेल। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन लॉगिन में जाओगे, आप अपना ईमेल आईडी चेक करोगे, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भर के आप भर सकते हो, लॉगिन करोगे। मोबाइल नंबर आप भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड। याद रखें कोई भी डिटेल आप गलत ना डालें, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कैप्चा कोड भरते हैं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म टोटल खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है, टिक लग गया। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं। आई हैव रीडन केयरफुली, जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट। यहाँ पे यही स्टेप्स है। रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म भरोगे, अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, पेमेंट करोगे और फिर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करोगे। ये 4 प्रोग्राम हैं। नेक्स्ट आप यहाँ टिक करोगे, अप्लाई नाउ कर दोगे। ये आपका टोटल फॉर्म खुल गया। चॉइस ऑफ सेंटर, सबसे पहले आप 3 सेंटर डिसाइड करोगे अपने नज़दीकी, जो कि मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। टोटल 29 सेंटर्स दिए हैं। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सब पहले से आएगा। आपको बस जेंडर, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है, पीएच से हैं या नहीं वो सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या नहीं ये सेलेक्ट करना है। अगर हैं तो वो सब बाद में डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से हैं या नहीं, आपका अपना रिवीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर देना कंपलसरी नहीं है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस जगह स्टार मार्किंग है उस जगह पे आपको वो चीज़ कंपलसरी है भरना। ईमेल आईडी वो सब तो पहले से आ जाएगा। आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स का एनुअल इनकम वो सब आप देना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट एड्रेस, नेक्स्ट आपका
परमानेंट एड्रेस। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इसमें ध्यान रखें आप अपीयर्ड है या पास्ट है। अगर आपका गैप है तो आप पास्ट में टिक करोगे, अगर आप 2024 में पास आउट हुए तो अपीयर में टिक करोगे। अपीयर में टिक करोगे, अपीयर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उस टाइम तक आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ था। तो देखो, जब भी आप अपीयर में किए तो सिर्फ क्लास 10th का आया, जब आप पास्ट में करोगे तो 12th का भी आ जाएगा। ये सब ईयर भर दोगे, बोर्ड किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से हो, मार्क्स कितना मिला, टोटल कितना मार्क्स था, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पीसीएम या पीसीबी आप कौन से भर रहे हो, मैथ से दे रहे हो या बायो से दे रहे हो, तो इसमें आपको इंडिविजुअल टोटल मार्क्स बताना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका इंडिविजुअल बायोलॉजी में कितना मार्क्स था, इंटर का आईएससी का आपको भरना है, कितना मार्क्स आपको मिला, कितना टोटल था बायोलॉजी में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिक्लेरेशन को टिक करोगे और फिर 7 नेक्स्ट करोगे। देन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाओगे। देन आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फी पेमेंट करोगे। ये आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट है। इसमें मैं आपको सब कुछ, ये एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और स्टार मार्किंग वाले जितने भी हैं वो आपको भरने ही भरने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा मैं आपको बता दिया हूँ, और एक वीडियो डॉक्यूमेंट पे कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। जितना जल्दी हो ये फॉर्म भर दीजिए, फ़ी पेमेंट भी कर दीजिए। और मान लीजिए किसी का फ़ी पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन नहीं आता है 2 दिन के अंदर, डोंट वरी, कभी कभी सर्वर के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी वेबसाइट, पैनिक मत होइएगा। बस अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप अभी के अभी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोस, अगर आप पीजी के कैंडिडेट हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको पीजी सीईटी एसबी निवतार इंडिविजुअल वाइज लेता है, जिसमें कि एमपीटी, एमपीओ, एमओटी है। एमओटी में 4 स्पेशलाइजेशन है, वो सभी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ग्रुप और टेलीग्राम चैनल कॉलेज थेरेपी और सीईटी का जो काउंसलिंग ग्रुप चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप न्यू कैंडिडेट है, यूजी के लिए भर रहे हैं, तो ही आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ग्रुप में फिजूल का कुछ भी मैसेज मत कीजिए। सटीक चीज़ आपको जो पूछना है वो चीज़ पूछे। पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।